براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ مسلسل انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے ان کی فکر کرتا ہے اور بر وقت رہنمائی فرماتا رہتا ہے، تاکہ ہم انسان جو اس کی مخلوق ہیں اس کی برکات، اس کی رہنمائی میں پاتے چلے جائیں۔ اور ان برکات کو پانے کا ایک طریقہ دعا بھی ہے۔ ہم نے سال کے آغاز میں موضوع دعا رکھا۔ ہم سب جب اس دنیا میں مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ہمارے لیے دعا کیجئے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ جی ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، دعا یا میٹنگز ہوتی ہیں، آئیے ہم سب دعا کریں۔ لیکن کیا وہ دعائیں سنی بھی جا رہی ہیں؟ ان کا جواب بھی آ رہا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پھر سے متوجہ ہوں کہ خدا نے کس طرح سے دعاؤں کے لیے تعلیم ہم تک پہنچائی ہے۔ لیکن ضرور ہے کہ وہ تعلیم درست طریقے سے، جس طرح سے وہ ہے اس طرح سے ہم جان سکیں، اس سے واقف ہو سکیں۔ لیکن آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں۔ صورتحال چونکہ کچھ خراب ہے تو دور حاضرہ کے سرچ سکالر ہیں محترم مرزا انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ آئیے وہ کیا کہہ رہے ہیں خاص طور پر بر صغیر کے علماء کے بارے میں۔ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ وہ خدا اور وہ اللہ جو انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے علماء نے اپنی پبلک کو جس کا تعارف کروایا ہے، وہ خدا اور ہے۔ اور جو خدا قرآن اور سنت کے اندر جس کا کریکٹر آیا ہے، جس کا کردار آیا ہے، جس کی پرسنالٹی آئی ہے، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ بالکل اور ہے۔ اسی لیے وہ جب ہم کوئی بات کتاب و سنت سے کرتے کہتے ہیں سیدھا آج تک سنی نہیں۔ حالانکہ ان کو پوچھیں کہ آپ نے کتنی ماشاءاللہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کر لی ہے قرآن و سنت میں، آپ کے باؤ اجداد نے بھی ایک دفعہ قرآن پاک ہی پورا ترجمے سے نہیں پڑھا ہوا، تو آپ اتنا بڑا کلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے تو آج تک یہ بات سنی نہیں ہے۔ بھائی آپ نے نہیں سنی تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ قرآن پاک میں لکھی ہے۔ اگر آپ بریلوی ہیں تو امام رضا بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، اگر دیوبندی ہیں تو اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، اگر آپ اہل حدیث ہیں تو آپ جونا گھڑی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں، اگر آپ اہل تشیع ہیں تو سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی مکتبہ فکر سے، اگر آپ کچھ بھی نہیں ہیں، سمپل سادے مسلمان ہیں، تو آپ فتح محمد جلندری صاحب کا اور مولانا مودودی صاحب کا ترجمہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں تو کوئی تحریف والا معاملہ ہی نہیں ہوا۔ مرزا صاحب بہت بڑے اسکالر ہیں، معلمین میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ ہم ان کی سب باتوں سے اتفاق نہیں کرتے، جیسے ہر شخص کی آزاد مرضی ہے جو وہ ریسرچ کرتے ہیں، اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ لوگ خود فیصلہ کریں، تحقیق کریں، ہم تو باتوں کو کھول کر پہنچا دیتے ہیں۔ اب اس کلپ کو بار بار آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ریکارڈڈ ہے اور رہے گا بھی، یوٹیوب پر بھی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جو علماء نے، خاص طور پر انہوں نے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے علماء کے بارے میں بتایا کہ خدا کے بارے میں اور انبیاء اکرام کے بارے میں جو تعلیم پہنچائی گئی ہے وہ تعلیم نہیں جو ہونی چاہیے تھی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے تو کبھی پڑھا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں۔ تو بھی اگر سنا نہیں، پڑھا نہیں تو آپ پڑھ لیجئے۔ تو دعا کے تعلق سے جب آج ہم بات کر رہے ہیں پروگرام فضل ربی میں، اور میں اکثر یہ کہتا ہوں یہ شو خداوند کے فضل سے جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں خدا کی طرف سے، اس کے کلام کے وسیلہ سے، ان پر غور کرنے کے لیے ایک آواز ہے، بلاوا ہے۔ فیصلہ انسانوں کے ہاتھ میں ہے، خدا نے خود فیصلہ کرنا ہے ایک دن۔ کسی انسان کے ہاتھ میں کسی انسان کا فیصلہ نہیں ہے کہ وہ اسے کافر یا مومن قرار دے، جنتی یا دوزخی قرار دے۔
बाइबल पढ़ लीजिए, वाज़ेह आयात, आप कुरान पढ़ लीजिए। अगर आप कुरान को इल्हामी किताब मानते हैं तो उसमें बहुत सी आयात, अगर बाइबल को इल्हामी किताब मानते हैं बहुत सी आयत। तो अगर तालीम उलमा ने दुरुस्त नहीं पहुंचाई तो फिर ज़रूर है कि हम देखें कि जो बातें हम तक पहुंची हैं। फिर से कुछ किताबें दिखा दूंगा, चूँकि हम दुआ के ताल्लुक से सीखेंगे कि हज़रत ईसा मसीह मुसलमान नबी मानते हैं, मसीही खुदावंद मानते हैं। उन्होंने दुआ के ताल्लुक से जिस दुआ का जवाब इंसान को मिले, उन्होंने क्या तालीम दी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जनाब उनकी तो शरीयत ही ख़त्म हो गई है। सूरा यूनस 94 पढ़ लीजिए, वाज़े तौर पर उसमें लिखा हुआ है किस तरफ रहनुमाई की गई है। सूरा यूनस उसकी 94 आयत किस तरफ रहनुमाई की गई है। सब पढ़िए, गौर कीजिए और पढ़ के फिर कॉल करें तो अच्छा रहेगा। पढ़े बगैर अगर कॉल कर देंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो पढ़िए पहले रहनुमाई किस तरफ की गई है। तो हम ऐसी दुआएं जो हमारे लिए आसमान से जवाब लेकर आएं, ऐसी दुआएं जो आसमान से जवाब लेकर आएं और उनका जवाब हम ज़मीन पर देखें। अभी एक पास्टर साहब से कल बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 98% जो कलीसियाएं हैं वो सिर्फ दुआएं हवाओं में ही हैं, आसमान तक नहीं पहुंचती, 2% हैं। उन पादरी साहब से मैंने कहा था कि अगर आप बात करना चाहें तो कॉल भी कीजिए और बताइए ये कैसे है और तस्दीक कीजिए, वजाहत कीजिए। तो अगर पादरी साहब वो सुन रहे हैं तो आज ज़रूर कॉल कीजिए और बताइए पूरी दुनिया को। और मैंने उनसे ये भी पूछा था कि आप जो 98 हैं आप उनमें हैं या जो 2 जिनका जवाब आता है आप उनमें हैं। तो बातें तो ऐसे ही हैं कि उनको फिर देखना पड़ेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं कैसे सीखे। मुसलमान, हिंदू, सिख, पारसी भाई सब दुआ करते हैं, लेकिन वो दुआ जिसका जवाब हमें मिले उसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने क्या तालीम दी। तो उलमा ने अगर नहीं बात पहुंचाई, जो अंबिया इकराम के बारे में तालीम है, खुदा के बारे में तालीम है, तो आइए आज हम भी देखते हैं शो में कि दुआ के ताल्लुक से अगर सीखना है तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या तालीम दी और कुरान और अहादीस इसके बारे में क्या कहते हैं। तो मैं जल्दी से आप तमाम अहबाब की नज़र फिर से जल्दी कर दूंगा, किताबें भी और हवालाजात भी, ताकि आप देखते चलें कि जब हम यीशु मसीह की तालीम की बात करेंगे तो वो कुरान और सुन्नत से हट कर नहीं होगी। जैसा उन्होंने कहा तो लोग पढ़ते नहीं हैं, तो किताबें मैं दिखाऊंगा, पढ़िए आप। हम चूंकि इसलिए पावर पॉइंट नहीं बना रहे, लोग कहेंगे शायद खुद ही इन्होंने कुछ लिख लिया हुआ है, तो किताबें आपको दिखाता जाऊंगा, आप देखते जाइए। और जल्दी से हम देखेंगे जब मसीह के बारे में, तो पहले कुरान और सुन्नत में, बाइबल के बारे में जहां पे मसीह की तालीम है क्या मिलता है, और देख लेते हैं हम। ये जमालीन फी शरा जलालीन, जलालुद्दीन सयूती मुसन्नफ। और ये जब बात करते हैं अंजील की, जिस तरफ जाएंगे, मैंने पहले भी दिखाया लेकिन जल्दी से दोहराई के लिए दिखा देता हूं। यहां पर वो लिखते हैं, मुसन्नफीन के अपने कलाम से मुमताज करने का इसके सिवा कोई जरिया नहीं कि जहां सीरत नगार कहता है कि मसीह ने यह फरमाया या लोगों को यह तालीम दी, सिर्फ वही मकामात असल अंजील के अज्जा हैं। कुरान इन्हीं अज्जा के मजमुआ को अंजील कहता है और इन्हीं की वो तस्दीक करता है। आज कोई उनके बिखरे हुए अज्जा को मुरतब करके कुरान से उनका मुकाबला करके देखे तो वो दोनों में बहुत कम फर्क पाएगा। तो ये तफसीर है, अंजील में आज भी बहुत कम फर्क पाएगा तो मौजूद है। तो अगली बात देख लीजिए, यह हमने कुरान से देख ली तफसीर कि बाइबल में जो कुछ पाया जाता है वो आज भी मौजूद है। और सूरा यूनस 94 तस्दीक करती है, जरूर पढ़िए। अब हदीस से देख लेते हैं कि आखिर जमाना में किस तरफ रहनुमाई करने की बात की गई है। फिर किताब के मुसन्नफ जलालुद्दीन सयूती हैं, अल खासुल अल कुबरा। अगर कभी मेरी प्रोनाउंसिएशन किसी भी लफ्ज़ की दुरुस्त ना हो तो माफ़ी चाहता हूँ। मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, कभी मैंने मुअल्लम होने का ना दावा किया है ना स्कॉलर होने का दावा किया है। तिफले मकतब एक तालिब इल्म हूँ, सीखता रहता हूँ। अगर कहीं तलफ़्फ़ुज़ की गलती हो जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जिन लोगों का तलफ़्फ़ुज़ अच्छा है वो रहनुमाई फरमा दिया करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी। वैसे जिनकी उर्दू खूबसूरत और तलफ़्फ़ुज़ बहुत आला है, उनके अमाल भी हमारे सामने आईना हकीकत दिखा रहे हैं। तो सीखने की बातें हैं, सीखना है
اور خدا سے رہنمائی پانی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اخیر زمانہ میں جو حدیث ہے وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو یہ حصہ جلد دوم ہے، کتاب کا نام آپ کے سامنے، مصنف کا نام آپ کے سامنے۔ یہاں پر اخیر زمانہ کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، جو حدیث ہے عنوان ہے کتاب اللہ کو نہ چھوڑنا، اور اخیر زمانہ کے بارے میں کیا لکھا ہے یہ ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زمانے میں وہ کرنا جو حضرت عیسیٰ کے اصحاب نے کیا، انہیں سولی پر چڑھایا گیا اور آروں سے انہیں چیرا گیا، وہی کرنا اس زمانے میں جو حضرت عیسیٰ کے صحاب، حواریوں نے، صحابہ نے، تابعین نے کیا، وہی کرنا۔ تو انہوں نے کہاں سے سیکھا تھا؟ انہوں نے یسوع مسیح سے سیکھا تھا۔ تو یسوع المسیح کی تعلیم کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے، آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ میں آپ کو دکھاتا چلا جاؤں گا جلدی سے، اور یہاں پر اس سے پہلے کہ تعلیم کی بات کریں چند آیات دیکھ لیتے ہیں، پہلی جو سورت ہے اس میں سے، اور پھر ہم آگے چلیں گے۔ اور اس سورت میں کیا لکھا ہوا ہے، پہلی جو سورت ہے اس کی چند آیات دیکھتے ہیں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے۔ دیکھ لیجئے، مسیح کی تعلیم پر آنے سے پہلے میں نے دکھایا بائبل کے بارے میں، پھر وہ کرنا جو حضرت عیسیٰ مسیح کے صحابہ نے کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں، پہلی سورت ہے اور ہمیں یہاں پر آیات دیکھ لیجئے، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا۔ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام کیا۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں انعام کن پر کیا ہے۔ یہ آ جائیے، یہ سورہ 43 ہے۔ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو بس ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا تھا، اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو ایک نمونہ بنایا تھا۔ جن پر ہم نے انعام کیا تھا، برکت دی تھی، راہ دکھائی تھی، ہدایت پر تھے، وہ میرے کلام لے کر آئے تھے، وہ سیدھی راہ دکھانے والے تھے، ان کی راہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، عیسیٰ مسیح پر انعام کیا۔ تو آئیے اب ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر جب عیسیٰ مسیح پر انعام کیا ہے تو ان کے جو آیات آج بھی موجود ہیں، متشابہ نہیں ہیں، منسوخ نہیں ہیں۔ تو یہاں پر سورہ 3 ہے، اس میں آ جاتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھ رہے ہیں، یہاں پر انہوں نے فرمایا کہ سیدھا راستہ یہی ہے، ہمیں سیدھے راستے کا تعلیم دے۔ اور پھر ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ نمبر 3 میں ہی، اور اس کی 55 آیت میں یہ جو باتیں ہیں، کیا یہ ایک زمانے تک تھیں یا قرآن اس کے بارے میں کچھ اور بھی ہمیں بتاتا ہے؟ آئیے دیکھ لیتے ہیں، اسی آیت میں سے 55 آیت ہے۔ اس 55 آیت میں سورہ آل عمران اور اس کی 55 آیت یہاں پر لکھا ہے کہ اے عیسیٰ، تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا اور جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کی اذى سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔ جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے ان کو قیامت کے دن تک۔ تو اتباع کرنے والے کب تک؟ قیامت تک۔ تو باتیں بہت واضح ہمارے سامنے، آپ کے سامنے آیات بھی رکھ دی ہیں۔ تب انہوں نے جو دعا کی تعلیم دی ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے دعا کی تعلیم دی ہے۔ یوحنا کی انجیل 16 باب اور 23ویں آیت، اور پھر دیگر باتیں بھی ہم دیکھیں گے دعا کے تعلق سے۔ پاسٹر پرویز صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ پاسٹر پرویز صاحب کیسے ہیں آپ؟
पास्टर प्रवेश साहब कैसे हैं? जी मैं खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। जी बहुत शुक्रिया। मेरी दरख्वास्त होगी कि 16वां बाब यूहन्ना का और उसकी अगर 23-24वीं आयत आप हमारे लिए पढ़ दें तो शुक्रगुजार होंगे, ताकि हम देखें कि तालीम क्या है। जी पाक कलाम में इस तरह से मरकूम है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच कहता हूं कि अगर बाप से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुमको देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने ये हवाला हमारे लिए पढ़ा है। तो नाजरीन, हमने कुरान और सुन्नत की रोशनी में देखा, अब हम बाइबल में से पढ़ रहे हैं, यूहन्ना की अंजील से। तो दुआ करने का तरीका क्या बताया गया है? पास्टर साहब, आप जरा इस बात में बताइए कि तरीका क्या बताया गया है दुआ मांगने का, किस नाम से हमें दुआ मांगनी है और इसमें क्या वादा है, इसको थोड़ा सा खोलिए। जी यहाँ पे बड़ा वाज़ेह तौर से पाक कलाम में लिखा है कि अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। गोया खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, तुमने बहुत सारे और सोर्सेस या और से इस्तेमाल किए होंगे, मज़ाहिब ने, कौमों ने, लेकिन मैं असल पैगाम तुम्हें दे रहा हूं। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। इस नाम से अगर हम मांगेंगे तो इस नाम में हमें मिल जाएगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुल जाएगा। जिसका मतलब है अगर इस नाम से हम दुआ मांगेंगे तो वो दरवाजे जो हमारे लिए बंद थे वो दरवाजे खुल जाएंगे, क्योंकि इस नाम में कुदरत है और इस नाम के वसीला से हम खुदाए पाक तक रसाई पाते हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने इस बात को खोला है। नाजरीन, अगर हम कदीम अदयान को देखें तो जो बरकत और लानत दी जाती थी वो देवी देवताओं के नाम से दी जाती थी, और खुदा ताला ने भी अपना नाम मुतारफ करवाया। और वही खुदा जिसको हम इब्राहिम, इजहाक और याकूब का खुदा कहते हैं, जो इल्हामी मज़ाहब हैं, वो इब्राहिम, इजहाक और याकूब के जो खुदा के अजीम बंदे थे उनके नाम से कहलाता है। तो जब नाम की बात आई है तो खुदा ने ये तरीकाकार बताया है, जो दीगर देवी देवताएं और माबूद थे उनके मानने वाले उनके नाम के साथ आकर बरकत पाते थे, उनके नाम के साथ जुड़ी होती थी देवी देवता की ताकत, कि वो ये जो कुछ हम करने जा रहे हैं फतह पाएंगे, जो कुछ हम मांग रहे हैं उसकी कुदरत है कि वो हमारे लिए कर देगा। तो जब खुदा ने अपने बंदों के लिए, बनी इसराइल के लिए बरकत और दुआ के जवाब की बात की, तो खुदा ने एक तरीका दिया कि जब भी तुम दुआ मांगोगे तो मैं उस दुआ का जवाब दूंगा, चूंकि मैं कह रहा हूं। तो यहां पर जब हम आते हैं, कलमा मुजस्सम हुआ, सूरह अल निसा 171 आयत, यूहन्ना की अंजील पहला बाब 14वीं आयत। वो जब आए तो लिखा है, कुरान से पढ़ा, खुदा ने उन पर इनाम किया, हमें वो राह दिखा जिन पर तूने इनाम किया, उनकी राह। और जब वो तालीम दे रहे हैं कि दुआ कैसे मांगना है, तो वो ये बता रहे हैं कि तुमने अगर खुदाए इब्राहिम, इजहाक और याकूब, जो खुदा के अजीम बंदे हैं, उनके खुदा से दुआ मांगनी है, तो पहले तरीका तुम्हें बताया गया। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें जो दीगर देवी देवता तुम्हारे चौगिर्द गैर वो माबूद जो हकीकी खुदा नहीं है उनके मानने वाले, और तुम जो हकीकी माबूद के मानने वाले हो, तुम्हारे लिए दुआ करने का तरीका यह है कि मेरे नाम से तुम दुआ मांगोगे। हमारे साथ एक कॉलर हैं, इनके साथ बात करते हैं और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। जी, आपको बराह रास्त फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं, बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। अच्छा, ये आपका प्रोग्राम एक जिंदगी टीवी पे जारी है, उसमें आपने कुरान मजीद की एक आयत का हवाला दिया है जिसमें आपने कहा था कि यीशु मसीह कहते हैं
کہ اللہ میرا بھی پروردگار ہے، آپ کا بھی پروردگار ہے، اور یہی سیدھا راستہ ہے نا؟ جی 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 بالکل. تو کیا جی سوال کیجئے. ہاں، تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو عیسائیت ہے یا کرسچینٹی ہے وہ تو تثلیث کی قائل ہے. جی بالکل. وہ تو یسوع مسیح کو خدا مانتی ہے، اور خدا کے روح باپ بیٹا کچھ تو خدا مانتے ہیں، تینوں خداؤں کی وہ پرستش کرتے ہیں. تو کیا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ اللہ میرا بھی پروردگار ہے، کہ آپ یہ اس عقیدے کے قائل ہوں گے کہ اللہ آپ کا بھی پروردگار ہے، یسوع مسیح کا بھی پروردگار ہے؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ تثلیث کو ماننے والے اور جو تثلیث کو نہیں ماننے والے ان کا خدا ایک کیسے ہو سکتا ہے، یہ ہے بیسیکلی آپ کا سوال، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، یہی ہے کہ یسوع مسیح نے تو سیدھا راستہ یہی بتایا ہے کہ اللہ جی کچھ خرابی ہے، کنیکشن خراب ہے، ان سے دوبارہ بات کروا لیجئے. ہاں جی، تو بہت اہم سوال، بہت دلچسپ سوال اٹھایا ہے انہوں نے. ہاں یہ میں سوال کر رہا ہوں. ہلو جی، کچھ کنیکشن خراب ہے، لیکن سوال بہت خوبصورت انہوں نے اٹھایا ہے کہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میرا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے. اب یہاں پر معاملہ تثلیث کا آ گیا. اب جو ہمارے اسلامی بہن بھائی ہیں وہ تثلیث کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے جس طرح سے مسیحی سمجھتے ہیں. تو میں ان کو بہت آسان سا نسخہ بتا رہا ہوں، آپ کو بھی، اور مجھے کال کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ علماء سے پوچھ کر یا اپنی کتب پڑھ کے تو کال کیجئے گا. سورہ النساء 171 اور اس کے بعد دیگر بہت سی آیات میں آپ کو دے سکتا ہوں جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا نے کلمہ کو بھیجا، روح القدس جس کو آپ جبرائیل کہتے ہیں، روح القدس اور خدا. تو بہت سی آیات ہیں جن میں لکھا ہے خدا نے کلمہ کو بھیجا. خدا نے کلمہ کس صورت میں؟ جسم کی صورت میں بھیجا. آیات میں دے سکتا ہوں، بہت سی ہیں، لیکن سورہ النساء 171 کافی بہتر ہے. دیگر بھی بہت سی آیات ہیں میرے پاس ہیں، میں دے سکتا ہوں، لیکن سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن میں لکھا ہے کہ خدا نے کلمہ بھیجا. اب کلمہ اور متکلم، اس میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ یہ فرق بتا دیں تو پھر بات آپ کو سمجھ آئے گی. تو متکلم اور کلمہ، بولنے والا اور اس کا کلمہ، اس میں کیا فرق ہے؟ تو لکھا ہے قرآن میں کہ خدا نے کلمہ بھیجا. اور روح القدس کا لفظ جو آتا ہے تو یہ الہی ہستیوں کے لیے، القدس پاک ترین، یہ صرف الہی ہستی کے لیے ہو سکتا ہے. تو اکثر بریکٹ میں لکھا ہوا ہے روح القدس جبرائیل. تو یہ قرآن کی بات ہے. تو اب پھر سے میں درخواست کرنے کو غور سے سنیے جو میں کہنے جا رہا ہوں. خدا نے کلمہ بھیجا. کلمہ متکلم اور کلمہ بولنے والا، اور کلمہ جو الفاظ آ رہے ہیں، جو کلمہ آ رہا ہے جو اندر سے نکلتا ہے، الفاظ اندر سے نکلتے ہیں. تو کلمہ اندر سے نکلا، مسیح نے فرمایا میں باپ میں سے نکلا ہوں. تو خدا نے کلمہ بھیجا. کیسے بھیجا؟ جسم میں بھیجا. تو جسم لیا کس نے؟ خدا کے کلمہ نے. تو متکلم میں اور کلمہ میں کیا فرق ہے؟ اور جب وہ جسم میں آیا ہے کلمہ تو اس کو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اور روح القدس آپ کہتے ہیں جبرائیل ہے، ہم کہتے ہیں کلام خدا کے مطابق کہ روح القدس خدا ہے، خدا کا روح ہے. تو قرآن میں دیکھیے، پہلے تو یہ بتائیے کہ کلمے میں اور متکلم میں کیا فرق ہے. آسانی سے بتا دیتا ہوں. جج میں، اور جج جب حکم دیتا ہے، کلام کرتا ہے، یو آر فری، تم آزاد ہو، اس میں کیا فرق ہے؟
तो इसको अगर आप थोड़ा सा समझे तो फिर आपको समझ आ जाएगी, 3 खुदा नहीं है, एक खुदा है, लेकिन उसका इजहार की जब बात करते हैं तो फिर हम ये कहते हैं, बाइबल कहती है खुदा बाप, बेटा और रूहुल कुद्स। मेरे साथ पास्टर प्रवेश साहब भी हैं। पास्टर प्रवेश साहब, मैंने कुरान से ये बात उनको बताई है कि वो अगर ये समझ लें, खुदा कुरान में खुदा कह रहा है, कलमा आया है ईसा मसीह और वो जिस्म में आया है, तो कलमा और भेजने वाले मुतकल्लम में और कलमा में तो कोई फर्क नहीं है। आप इस पर कोई रोशनी डालनी चाहें? जी, बड़ी खूबसूरती से डॉक्टर दानियाल जो आपने बात बताई कि जब ये सारी कायनात जो है वो तख्लीक हुई और खुदा ने जो फरमाया, अगर उसने कहा रोशनी हो जा तो रोशनी हो गई। तो ये कौन था? कलमा करने मुतकल्लम और कलाम, उसके कलाम के वसीला से। अब ये जो जिस्म में उसका जाहिर होना था, वो तमोथियस के खत में लिखा है कि दीनदारी का भेद तो बड़ा है कि वो जिस्म में जाहिर हुआ। अगर वो जिस्म में, इंसानी जिस्म में ना आता तो इंसानों के दरमियान वो आकर जो कहना चाह रहा था वो नहीं होता। और दूसरी वजह थी इस जिस्म में, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत थी। अब इंसान जिसने गुनाह किया उस पर मौत जो थी वो लागू हो चुकी थी, और यीशु अल मसीह की मौत ने वो मौत जो मेरी और सारी दुनिया की थी वो मौत ली। अब खुदा को, रूह को मौत नहीं, अगर वो जिस्म ना लेता तो फिर ये मौत नहीं। और उसने इस मौत को सहकर आज इस मौत को शिकस्त भी दे दी, क्योंकि लिखा है कि आए मौत तेरा डंक कहाँ रहा, मौत फतह का लुकमा बन गई। इंसान ने गुनाह के सबब से तो मरना था, लेकिन मसीह के जी उठने के सबब से आज मौत हम पर हाकम नहीं। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बात तसलीस की थी, तो मैं चाहता था कि आप थोड़ा इस पर रोशनी डालते कि खुदा बाप, बेटा, रूहुल कुद्स जो है वो खुदा इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा जिसकी तालीम बाइबल में दी गई है वो 3 नहीं बल्कि एक है। तो इस पर अगर कुछ बात आप करना चाहें कि मसीही कैसे मानते हैं? जी, मसीह, खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा ने हिस्सा बहिस्सा, तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम करके आखिर जमाना में अपने बेटे की मार्फत कलाम किया। तो तसलीस का बड़ा सादा सा ये है कि जैसे हर इंसान वो है एक, लेकिन उसमें रूह भी है और उसमें जान भी है और उसमें जिस्म भी है। और खुदावंद यीशु मसीह का आना जो है ये उसका इजहार है। और बाइबल मुकद्दस इसकी वाज़ेह तौर पर बताती है कि यीशु मसीह जो है वो खुदा है, और वो खुदा इसलिए है कि खुदा को ही ये हक हासिल है कि वो किसी को जिंदगी दे। आज तक कोई नबी किसी मुर्दे को जिंदा नहीं कर सका, कोई देवता किसी को जिंदा नहीं कर सका। और इवन के कुरान में भी लिखा है कि मिट्टी के परिंदे बनाकर उनमें दम फूंकना, ये जात जो है सिर्फ खुदा की है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया। मोहतरम, आपको मुख्तसर बता देता हूं कि एक तरफ आप लिख लीजिए सफ़ाते, सिर्फ कुरान के मुताबिक एक तरफ लिखिए सफ़ाते खुदा ताला, दूसरी तरफ कुरान के मुताबिक, बाकी कोई किताब ना लीजिए, लिखिए सफ़ाते ईसा मसीह। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि कुरान में वही सफ़ात हैं जो खुदा की हैं, और ये उन्होंने इस ज़मीन पर जो पास्टर साहब ने फरमाया कि उन्होंने ये साबित किया कि वो खुदा हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं, और मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूं कि आप दोबारा कॉल कीजिएगा ये 2 बातें करके, ठीक है? एक तो कलमा और मुतकल्लम में क्या फ़र्क है, जज और जज के कलमे में क्या फ़र्क है। दूसरी, आप अल्लाह ताला की सफ़ात लिखिए सिर्फ कुरान के मुताबिक, और एक तरफ ईसा मसीह की सफ़ात लिखिए कुरान के मुताबिक, और फिर कॉल कीजिए और फिर बताइए आपको क्या जवाब कुरान से मिला। हम दुआएं कर रहे हैं, तो हमारे साथ टेलीफोन के ज़रिए दुआ करने के लिए मौजूद हैं जनाब मोहतरम डॉक्टर JP गिल साहब। JP गिल साहब कैसे हैं? डॉक्टर साहब आप ठीक ठाक हैं? जी डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकालते हैं। पास्टर साहब, बाइबल ये फरमाती है कि सब के लिए बरकत चाहो, किसी के लिए लानत ना करो।
اور بائبل میں لکھا ہے اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرو. تو پوری دنیا میں نفرت بڑھ رہی ہے, تعصب بڑھ رہا ہے. ایک پاسٹر صاحب سے کل بات ہو رہی تھی, ایک جو ابھی مسیحی ہوا ہے شخص, اس نے میرے فیس بک پر لکھا کہ مسیحوں کو, وہ کہا میں مسیحوں میں آیا ہوں اور یہ موجود ہے ابھی بھی, وہ چاہے دنیا کا کوئی بھی چرچ آپ لگا لیں. اس نے کہا جی مسیحی تو خود آپس میں محبت نہیں کرتے, یہ تو خود تعصب سے بھرے ہوئے ہیں, خود ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, چودھری بننے کے لیے ایک دوسرے پر حکمرانی کرنے کے لیے وہ سازشیں کرتے ہیں جو کلام تو اس کے خلاف بات کرتا ہے. تو یہ ایک ایسا لمحہ فکریہ تھا جس نے ہلا کے رکھ دیا کہ ایک شخص باہر سے مسیحوں میں آیا ہے اور مسیحی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے, جو کچھ ہم مرضی کرتے رہیں. تو بائبل یہ کہتی ہے محبت, تو یہ محبت کی کمی ہوتی جا رہی ہے, آخری دور کی نشانی بھی ہے, محبت کم ہو جائے گی. تو درخواست ہے کہ آج آپ دعا فرمائیے, اور کوئی آیت آپ پڑھنا چاہیں محبت کے تعلق سے تو بھی ضرور پڑھیے کہ خدا محبت کلیسیاں اور پوری دنیا میں لائے. جی, سب سے پہلے خدا ان کا شکر کرتا ہوں اس خاص پروگرام کے لیے جس کے ذریعے سے کافی لوگ خداون کے اس پیغام کو, اس کے رحم و فضل کو پہچان رہے ہیں. اور دوسرا, ابھی جو آپ نے بات کہی ہے بالکل ظاہری طور پر جو ہے پاک کلام سے میل کھاتی ہے کہ انت کے دنوں میں خداون کہتے ہیں آخری دنوں میں محبت کم پڑ جائے گی. خداون اور اس کا پیغام, اس کا کلام جو ہے بالکل سچا ہے. یسوع مسیح نے خود کہا ہے, لوکا کی انجیل اس کا 6 ادھیائے 27 سے لے کے پڑھتے ہیں, خداون نے کہا کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو, جو پرسیکیوٹ کرتے, جو ستاتے ہیں آپ پر, ظلم و تشدد کرتے ہیں, ان کو ان کے لیے دعا کریں, ان سے محبت کریں, سنیہ کریں. اس نے خداون نے ہم نے کہا ہے. اور خداون اور اس کا کلام جو ہے وہ اپنی طرف سے بالکل کلیئر ہے. حالانکہ لوگوں میں کمیاں ہیں, جو پاسبان ہے, خادم ہے, وہ اس میں پورا نہیں اتر رہے ہیں, وہ اپنی اس اوبیڈینس میں, اس میں وفاداری میں پورا نہیں اتر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خداون اور اس کے کلام میں کمی ہے. خداون اس کا کلام بالکل صحیح ہے, اور آج بھی ہمیں یہی کہتا ہے کہ محبت کری جائے, معاف کیا جائے, اور دوسرے کے لیے دعائیں کی جائے. ایون خداون یسوع مسیح صلیب پر خود کہا کہ ان کو معاف کرو کیونکہ یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے خود ہمارے لیے مثال قائم کری ہے کہ اپنے دشمنوں کے لیے, اپنے سے نفرت کرنے والوں کے لیے دعا کری جائے, ان کو معاف کیا جائے, اور ہمیں ایسا ہی کرنے کے لیے کہا گیا ہے. بہت شکریہ, بہت شکریہ پاسٹر صاحب. تو درخواست ہوگی کہ اب آپ دعا کیجئے, جہاں جہاں نفرت اور تعصب ہے خدا اپنے رحم اور کرم سے وہاں پر محبت اور بھائی چارے کو لائے. چونکہ یہ ایسا پھل ہے جو نظر آ جاتا ہے, نفرت اور محبت نظر آ جاتی ہے, چاہے لوگ 100 پردے بھی ڈالیں لیکن وہ نظر آ جاتی ہے. تو دعا کیجئے کہ کچھ ایسا خدا کا روح کرے کہ محبت آ جائے. اور جو مسیحوں کو ستاتے ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجئے کہ خدا ان کو بھی برکت دے, ان کو حکمت دنائی دے, تاکہ وہ بھی محبت, جو خدا محبت ہے, اس کو جان سکیں. دعا کیجئے. جی, خداون تیرا شکر, تیری تعریف, تیری حمد و ستائش یسوع ناصری کے وسیلہ سے ایک بار پھر خداون تیرے پاک کبھی چرنوں میں آتے ہیں, اور تیرے اس مقدس ہاتھ کے نیچے ہم اپنے آپ کو اور تمام ان خداون خادموں کو, کلیسیوں کو, ان ستانے والے لوگوں کو سپرد کر دیتے ہیں جو خداون آپ کو جانتے نہیں. ہم دعا کرتے ہیں ایون کہ کلیسیوں میں لوگ جو خداون تیری محبت کو پہچان نہیں رہے ہیں, جن میں خداون وہ محبت ٹھنڈی پڑتی جا رہی, ہم دعا کرتے ہیں خداون مل کر کہ یسوع کا رحم, اس کا فضل اتنا آئے کہ نفرت, بٹوارے اور من مٹاؤ جاتے رہے. خداون کا محبت, اس کا رحم, اس کا فضل اور ظاہری طور پر نظر آنے لگے, نہ کیول کہ خیالوں میں, سوچوں میں, بلکہ کرموں میں. خداون ہمارے کام کاج میں وہ ظاہر ہونے پائے کہ خداون محبت ہے, اور ہم ان کے شاگرد ہونے کے ناطے ہمارے اندر وہ چیزیں نظر آئیں. خداون دعا کرتے ہیں کہ ہر طرح کی من مٹاؤ جاتا رہے. شیطان کے وہ سب یکتیاں, وہ سب چالیں جو خداون تیرے لوگوں کو بانٹتی ہیں, جو ان کو طرح طرح کی جسمانی باتوں میں کھو جانے کے لیے مجبور کر دیتی, ہم دعا کرتے ہیں خداون یہ خواہشیں, جسمانی باتیں دور ہو, اور یسوع کے روح کا پیغام کام کرے, روحانی کام شروع ہونے پائے, بیداری آنے پائے, جاگرتی آنے پائے, ریوائول آنے پائے. خداون تیرا رحم فضل لوگوں کے اندر آئے, اور ہم ستانے والوں کے لیے جو خداون تیری کلیسیا کے خلاف, تیرے خادموں کے خلاف, تیرے بچوں کے خلاف جو خداون
तरह तरह की बातें करते हैं और खुदावन तरह तरह के तशद्दुद जुल्म करते हैं, जो उनके बारे में सोचते हैं, बोलते हैं और कहते हैं, उनके खिलाफ काम करते हैं। हम दुआ करते हैं मिलकर खुदावन के तेरे रहम तेरा फजल उन पर आए। हम उनको मन से माफ करते हैं और कहते हैं खुदावन उनके मन की आंखें खुल जाए, रूहानी आंखें खुल जाए कि पहचानने पाए खुदावन क्या है, उसकी मोहब्बत क्या है, उसका रहम फजल क्या है, कि वो ऐसा खुदावन है जो पूरी कायनात का है, पूरी दुनिया के सब लोगों का है, सब मजहबों का है। ऐसा खुदा है जिसने आसमान जमीन को बनाया है। वो किसी खास फिरके का, खास कबीले का, खास लोगों का नहीं, बल्कि सबका खुदावंद है जो सबसे स्नेह मोहब्बत करता है। तो हमारी दुआ खुदावन उन पर तेरा रहम है, फजल है, को तेरी ओर खींचे चले जाए, मजहबों की ओर नहीं, मनमुटाव की तरफ नहीं, नफरत की तरफ नहीं, लड़ाइयों की तरफ नहीं, एक दूसरे को हलाक करने की तरफ नहीं, बल्कि यीशु की तरफ खींचे चले जाएं, जो मोहब्बत है, जो रहम है, जो फजल है, जो हमें माफ करता है। खुदावन तेरा हाथ उन सब पर आए। इवन खुदावन कलीसियों के लिए, कांग्रीगेशन के लिए, तमाम खादमों के लिए हम दुआ करते कि यीशु का पैगाम, यीशु की मोहब्बत, यीशु का रूह लोगों की जिंदगियों में काम करने पाए। इस प्रोग्राम के द्वारा जो कोई भी सुन रहा है, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। हम मसीह के नाम से आमीन कहते हैं। हमारे साथ एक और टेलीफोन के ज़रिया से कॉलर हमारे साथ हैं, उनके साथ बात करेंगे। और मिसेस नदीम दीन हमारे साथ हैं। सिस्टर कैसे हैं आप? हाँ जी, गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हो? हाँ जी, आप सुनाएं। जी, खुदावंद का बहुत शुक्र है। जो कनेक्शन है वो क्लियर नहीं है, तो मेरी दरख्वास्त होगी कि कनेक्शन जो है ये क्लियर हो तो फिर बात करवाइए। उतनी देर में मैं दूसरी कॉल जो है वो ले लेता हूँ। कनेक्शन दुरुस्त नहीं है। हमारे साथ कॉलर हैं जी, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। सलाम जी सर, मुसीब खुदावंद में आपकी सलामती हो। डॉक्टर दानियल साहब जी, आपकी भी सलामती हो। कैसे हैं आप? शुक्र है खुदावंद का सर, बड़ी मेहरबानी, आपने अपने कीमती टाइम में से मुझे टाइम दिया नचीज से बंदे को, तो मैं अपनी आवाज आप तक पहुंचा सकूं और पूरी दुनिया में अपनी आवाज को पहुंचा सकूं कि मेरी कोई रहनुमाई की जाए। इस जुल्म और तहस्सुब के जो मुझ पर हो रहा है, मजहबी तहस्सुब का निशाना बनाया जा रहा है मुझे, और महकमे की नाइंसाफी और जुल्म की इंतहा हो गई थी। पहले भी आपको कॉल की थी, पिछली दफा भी, मगर टाइम थोड़ा सा मगर बता नहीं सकता था। खैर जी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं पहले तो आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी चाहता हूँ। मैंने अपनी टीम के लोगों से कहा था कि वो जो नुमाइंदे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के आपके इलाके में, उनका नंबर आपको दें, लेकिन वो क्या वजूहात हुई उन्होंने नहीं दिया। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और दूसरी बात आपसे ये कि आप ये बात याद रखिए कि खुदा ने अदालत का एक दिन मुकर्रर कर रखा है। जब इंसान खुदा बन बैठते हैं, वो मसीही हो या गैर मसीही हो, मैं आपको अपनी ज़िंदगी से बता रहा हूँ, जब भी कोई इंसान खुदा की जगह ले लेता है तो वो फिर खुदा के जुल्म, खुदा की अदालत का दरवाज़ा अपने ऊपर खोलता है, चाहे उसका रंग काला है, चाहे उसका रंग ब्राउन है, सफ़ेद है। जुल्म की इंतहा जब हो जाती है तो फिर खुदा अपनी अदालत को ले आता है। और ये मैं आज आपको खुदा का अदना खादिम होते हुए बता रहा हूँ कि जो लोग भी जुल्म कर रहे हैं खुदा की निगाह से ओझल नहीं हैं। वो इस ज़मीन पर भी अपनी अदालत को ले आता है और एक दिन उसने मुकर्रर कर रखा है, इसलिए इंसानों को वो ख़बरदारी और आगाही देता है। तो ये डॉक्टर जो आप पर जुल्म कर रहा है, पहले तो मैं आज जितनी भी पाकिस्तान की एजेंसियां ख़ास तौर पर उनसे दरख्वास्त कर रहा हूं कि ये जो जुल्म और ज़्यादती करने वाले हैं और फिर जो लॉ इन्फोर्समेंट के दीगर लोग हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, ये शख्स हमें पिछले साल से कॉल कर रहे हैं। और आपसे ये दरख्वास्त है, जो भी मेरे इस शो को मॉनिटर करते हैं, आपसे दरख्वास्त है जनाब, इस शख्स को कुछ इंसाफ दिलाइए। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। खुदा ने आपको इस लायक समझ कर ये सारे रुतबे अता फरमाए हैं। और अगर खल्के खुदा
पर जुल्म की इंतहा कर दी जाए तो खुदा जिसकी ये मखलूक है फिर उसका हाथ अदालत के लिए बढ़ जाता है। तो मैं अपनी टीम से भी दरख्वास्त करता हूं कि वो जो पिछली दफ़ा एक्सप्रेस के नुमाइंदे इनके इलाके में हैं, खुदारा इनका नंबर उनको दे दीजिए, और अगर कोई मुश्किल है तो मुझे बताइए। और जो वज़ीर आला हैं शहबाज शरीफ साहब, उनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि आप इस शख्स जो जुल्म और ज़्यादती का शिकार है, इंसाफ दिलाइए इसको, आपको खुदा ने वहाँ पर जिम्मेदारी दे रखी है। तो हम तो दुआ करते हैं मेरे भाई के खुदावंद आप पर, आपके बच्चों पर रहम करे और आपके लिए आसानियाँ मसीह के नाम से मुहैया हो जाएं। लेकिन ये हमारी टीम के जो लोग हैं आज आपको वो नंबर देंगे, आप उन साहब को कॉल कीजिए और सबसे बढ़कर खुदा को पुकारिए। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी खुदा के लोग इस ज़मीन पर उसको पुकारते हैं तो वो खुद उनकी मदद के लिए उतर आता है। अगर इंसान आपकी नहीं सुन रहे तो खुदा के हजूर चलाइए। और मैं आपको बाइबल का खादिम होता हुआ ये मुकम्मल यकीन दिलाता हूँ, खुदा ने फरमा रखा है मुझे पुकारो और मैं तुम्हें जवाब दूंगा। और यहाँ तक भी लिखा है कि जब मुझे सब छोड़ जाएं खुदा मुझे संभाल लेगा। तो मैं आपको कलाम से ही तसल्ली दे सकता हूँ। और इसके बाद अपनी टीम से दरख्वास्त करूँगा कि वो जो एक्सप्रेस न्यूज़ उसके नुमाइंदे थे उनके साथ आप राब्ता कीजिए, ताकि आप पर जो जुल्म और ज़्यादती की गई है हुक्मरान, और ख़ास तौर पर फिर दरख्वास्त कर रहा हूँ जो लोग मेरे शो को मॉनिटर करते हैं पाकिस्तान में, एजेंसीज़ के लोग, उनसे मेरी दरख्वास्त है, मिन्नत है कि इस शख्स के साथ भलाई कीजिए, खुदा आसमान से आपके साथ भलाई करेगा। ये मेरी दुआ भी है। बहुत शुक्रिया मोहतरम, आपने कॉल की, दिल बहुत दुखता है। कोई और बात करना चाहेंगे आप क्या? हाँ जी सर, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 1 मिनट लूंगा। मैंने ना 4 शहरों में मेरे तबादले किए गए और तनख्वाहें रोक ली गई। हर 50 किलोमीटर दूर मुझे हॉस्पिटल में फेंका गया। उजरा शाम की इनका मुकम्मी रैसी था, उधर से इन्होंने मुझे दीपालपुर में फेंका, तहसील दीपालपुर में। उधर से फिर इन्होंने बसीरपुर में फेंका, फिर बसीरपुर से उकाड़ा में, और मैंने फिर ढोल लेकर एहतजाज किया, प्ले कार्ड उठाकर कचहरियों में एहतजाज किया। तो मेरी इन्होंने तनख्वाहें बहाल कर दी और हमारी दोनों मियाँ बीवी की पोस्ट जो थी ट्रांसफर हमारी मर्जी से RHC अख्तराबाद कर दी गई, जिला उकाड़ा अख्तराबाद हॉस्पिटल में कर दी गई। मगर वहाँ से फिर इन्होंने EDO हेल्थ डॉक्टर सैफुल्ला और DHO मार अरशाद और डॉक्टर अरफान और बाकी जितने सेंटरों के थे सब इन्होंने लिखा किया हुआ था कि इसे मारना है जान से। इन्होंने मेरे साथ बहुत हादसे कराए, मगर मेरे यस्सु का फजल है, मैं आज तक जिंदा हूँ और मैं गवाही दे रहा हूँ यस्सु मसीह के नाम की जिंदगी चैनल पर कि यस्सु जिंदा है, वो मेरी दुआ सुनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि नासरत मुश्ताक साहब हैं जिन्होंने मेरी खबर लगाई है जाग मसीह न्यूज पर। उन्होंने मेरी 2 दफा खबर लगी हुई है 28/4/2017 को कि मजहबी तहस्सुब का निशाना बनाया गया, जानी और माली नुकसान पहुंचाना चाहते। मैंने तमाम अदारों में दरखास्तें दी हुई, नैब में, चीफ ऑफ आर्मी को, सुप्रीम कोर्ट को, EDO हेल्थ को, DPO उकाड़ा को, सबको दी हुई, मगर किसी ने मेरी नहीं सुनी, कोई मुझे जवाब नहीं आया। अब मैं एक मसीह वकील है हाई कोर्ट का, उससे मैंने अपील की है, मिन्नत की है, वो मेरा केस लड़ेगा। तो उसने अदालत का मैंने रजू किया, ये इंतकामी कार्रवाई की बात नहीं आ रहा है। मेरा घर छूट गया, 3 लाख का मेरा प्लाट था वो मेरा चला गया, मेरे बच्चे पढ़ाई से रह गए हैं। हम इधर 4 चक अब जागू वाला में रहायश रखी हुई है किराए के मकान में, और इन्होंने मेरी पे भी बंद की है। ये जालिम अपनी कार्रवाई से बाज नहीं आ रहे, सब ने मिली भगत की है। इनकी इतनी करप्शन है, इन्होंने ट्रक दवाइयों के चोरी करवाए हैं। उकाड़ा हॉस्पिटल के स्टोर कीपर है शेरा बलोच, ये सब मिलकर करप्शन करते, इतने करप्ट है। अगर वजीर आला साहब मेरी आवाज सुन रहे हैं, टैक्सी हेल्प ब्रदर भाई जी, मदद करें जी भाई जी, मैं दरख्वास्त करूंगा क्योंकि बेहिस हैं, सुनिए अब गौर से, ये जितने मसीही रहनुमा हैं या मुसलमान हैं या हिंदू हैं या सिख हैं, ये सब अपने अपने एजेंडों पर काम कर रहे हैं। खल्के खुदा के लिए इनके दिल में रहम तरस नहीं, ये मुर्दा ज़मीरी की इंतहा है। ये लोग जो ऑफिसेज में बैठे हुए हैं,
یہ جو بشپ صاحبان ہیں، آج بڑی معذرت کے ساتھ میں سب کی عزت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، چونکہ میرے خاندان نے مجھے یہی سکھایا ہے، میری بائبل نے مجھے یہی سکھایا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ خداوند یسوع مسیح کا روح وہ صداقت اور عدل کا پیغام دینے والا روح ہے. یہ جو ہمواریاں ہیں، یہ جو تعصب اور کرپشن ہے، 2018 سن لیجئے، خداوند رب الافواج فرماتا ہے، میری عدالت میرے گھر سے شروع ہوگی. میں نے تم کو پالا، میں نے تمہاری پرورش کی، میں نے اپنے آسمان سے اپنی برکات کو تمہارے لیے انڈیلا، لیکن تم نے میرے کلام کو نظر انداز کیا، تم نے میرے کلام کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، تم نے نافرمانیوں پر نافرمانیاں کی. اب میری عدالت میرے گھر سے شروع ہوگی. اے قوموں اور قبیلوں سنو، میں اپنے کلام کے مطابق تمہیں خبردار کرتا رہا، تمہیں تنبیہ کرتا رہا، تمہیں تسلی، اطمینان اور برکات سے نوازتا رہا، لیکن تم نے میرے کلام کو رد کیا ہے. اس لیے اے میرے معصوموں کا خون بہانے والوں، اے میرے راست بازوں کو قتل کرنے والوں، تمہاری گلیوں اور بازاروں میں خون ہی خون ہے. اس لیے کہ میں رحم کا خدا، لیکن تم نے میری رحم کی آواز کو رد کیا ہے، تم نے میری رحمت کو نظر انداز کیا ہے. اس لیے باز آ جاؤ، اپنی بری راہوں سے پھرو، اپنے گناہوں پر ماتم کرو، میرے حضور میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنی بدکاریوں کا اقرار کرو، میں تمہیں بحال کرنے پر قادر ہوں. خداوند رب الافواج فرماتا ہے، میں رحم اور ترس اور بحالی کا خدا ہوں. رجوع لاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. آئیے ہم دعا مانگیں. بشپ سوہن لال صاحب اس شخص کے لیے دعا کیجیے. بشپ سوہن لال. اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. خداوند تو اپنا ہاتھ اس بھائی کی طرف بڑھا اور دعا کرتے ہیں تو اس سے سب سے پہلے تو اپنا اطمینان، اپنی تسلی اور اپنی برکات سے بھرے. اور اس وقت ہم دعا کرتے ہیں ان کے محکمے کے تمام ان اعلیٰ ادھیکاریوں سے، اعلیٰ افسران سے جو ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں، اور ان کے ذہن میں، ان کے ذہن میں، ان کے دلوں میں جو مجوی پربھو جی باتیں ان کو مجبور کرتی کہ وہ کسی دوسرے مذہب کے لوگوں کو پریشان کرے، تو ہم دعا کرتے ہیں ان کے دل کو، ان کے دل کی خواہشوں کو، ان کے دل کے وچاروں کو، ان کی ذہن کو تو بدل دے، اور ان میں معاف کرنا اور میل ملاپ سے بنے رہنا یہ باتیں ڈال. خداوند کی آخری دور کے آخری زمانے میں تیرے لوگ تسلی سے، اطمینان سے تیری حمد و ثنا ستائش کرتے ہوئے تیری زندگی کو تیری مرضی کے مطابق بتا سکے. اور خداوند میں دعا کرتا ہوں ان کے پورے خاندان کے لیے، اور اس وقت کے لیے، موقع حالات کے لیے میں دعا کرتا ہوں. وہ اپنا ہاتھ ایسا بڑھا کہ خداوند یسوع مسیح کے نام سے، یہوہ یرے، تو خدا وہ خدا ہے جس نے خداوند لال سمندر میں سے راستہ نکال دیا، اور خداوند تو وہ خدا ہے جو رات کو آگ کا کھمبا اور دن کو بادل بن کے اپنے لوگوں کی رہنمائی کرتا تھا. آج بھی تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے. میں دعا کرتا ہوں میرے اس بھائی کے لیے، خداوند تو اپنا ہاتھ بڑھا اور اس وقت اس کے جیون میں، اس کی زندگی میں جتنی بھی مشکلات ہیں، ییشو مسیح کے نام سے ان سے اس بھائی کو نجات دے، اور ان کے پریوار کو، ان کے خاندان کو بھی برکت سے اور تسلی اور اطمینان میں بنائے رکھ کہ تیری قدرت ان کی زندگی میں کام کرتی رہے، اس سے تیرا جلال ان کی زندگیوں میں ظاہر ہو. اور تمام ان افسران کے لیے، ساری حکومتوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں ان کے بھی ساتھ ہو، تاکہ وہ پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے دیانتا سے پربھو یسوع کے نام سے وہ سب لوگوں کو اپنے سامان سمجھے اور اپنے کاموں کو کریں، جس سے تیرا نام یسوع جلال پائے. سب کچھ تیرے ہاتھوں میں سونپتے یسوع کے نام سے مانگتے، آمین. آمین. بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ مسز شازیہ ندیم دین ہیں. ہم دعا کریں گے
सिस्टर कैसे हैं आप? जी डॉक्टर साहब ठीक है। हाँ जी, आप सुनाएं कैसे हैं आप? जी खुदावंद का बहुत शुक्र है, शुक्रिया आपने वक्त निकाला दुआ करने के लिए। आपसे दरख्वास्त होगी ख़ास तौर पर पाकिस्तान के जो चीफ़ जस्टिस हैं और चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आला हैं, हाँ जी और जो इंतज़ामिया के लोग हैं, बिशप साहबान हैं, मौलवी साहबान हैं, पंडित हैं, सब के लिए दुआ कीजिए खुदा साहब को दानिश दे हाँ जी और उनको हिकमत दनाई अता फरमाए कि वो तमाम इंसानों के लिए जिन पर खुदा ने उनको इख्तियार दिया है, रुतबा दिया है, ऑफिसेस दिए हैं, वो बेहतर तौर से कर सकें। और इसके साथ जितने टीवी चैनल्स हैं उनके लिए दुआ कीजिए ताकि खुदावंद अपना रूहुल कुद्स सब चैनल्स पर नाज़िल करे। तो इन दो बातों के लिए आप दुआ फरमाइए। हालेलुया। प्यार से बड़े जिंदा जलाली आसमानी बाप, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंदा, इस वक्त और इस नए साल के लिए खुदावंदा, और खास कर खुदावंदा पाकिस्तान में खुदावंदा मसीही उन खुदावंदा लोगों के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ खुदावंदा, उन रहनुमाओं के लिए, उन हाकिमों के लिए खुदावंदा जो उस मुल्क को चला रहे हैं खुदावंदा, तो उनके अंदर प्यार मोहब्बत भर दे ताकि वो मुल्क का निज़ाम बेहतर तरीके से चला सके खुदावंदा। और इस टीवी चैनल के लिए भी तेरी बरकत चाहती हूँ खुदावंदा, जितने भी देख रहे हैं या सुन रहे हैं खुदावंदा या तेरा कलाम तेरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं खुदावंदा, एक एक के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ खुदावंदा, एक एक के साथ हो खुदावंदा, क्योंकि खुदावंदा राह हक और जिंदगी तू ही है खुदावंदा, और जमीन पर कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, तेरा नाम ही यीशु नाम ही सब नामों से आला है खुदावंदा। मैं तेरे नाम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंदा। इस नए साल में खुदावंदा मुल्क पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर खुदावंदा, पाकिस्तान में अमन और अमान पैदा कर खुदावंदा, ताकि जितने भी वहाँ मसीही बहन भाई हैं खुदावंदा अपनी पनाह और हिफाजत में रख और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावंदा। और खुदावंदा टीवी चैनल के लिए भी तेरी बरकत चाहती हूँ खुदावंदा, तो इसको और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावंदा, ताकि खुदावंदा तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए खुदावंदा, तू बड़े और खुदावंदा हम घटते हुए नजर आए खुदावंदा। तेरी बरकत चाहती हूँ, तेरा फजल चाहती हूँ खुदावंदा, एक बार फिर खुदावंदा सबके लिए तेरी बरकत चाहती हूँ खुदावंदा, और ये सब कुछ मांगती और पा लेती तेरे जिंदा और जलाली नाम से, आमीन। मिसेस नदीम दीन हमारे साथ ही, बहुत शुक्रिया बहन जी। हमारे साथ एक और पास्टर हैं, उनके साथ बात करते हैं। जी आप ऑन एयर हैं, वक्त हमारे पास कम है, जल्दी से बात कीजिए जो आप कहना चाहते हैं प्लीज़। जी डॉक्टर साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके लिए और जिंदगी टीवी के लिए खुदा का कि जिन्होंने ये फजल बख्शा कि आप जैसे ने प्रोग्राम स्टार्ट किया और प्रेयर के हवाले से बरकत के लिए बात की। और जैसे कि मैं एक बात कह रहा था कि हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनी जाती। दुआएं तो उस वक्त सुनी जाएंगी जब बरकत उस वक्त मिलेगी जब दुआएं सुनी जाएंगी। जी शुक्रिया। तो क्यों नहीं सुनी जा रही हैं? आप समझ रहे हैं कि सुनी नहीं जा रही? हाँ जी, दुआएं 100 में से 98% दुआएं इसलिए नहीं सुनी जाती। मुकाशफा 2 बाब उसकी 4 वर्स में लिखा हुआ है, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। यीशु मसीह ने फरमाया था कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे वहां पर मैं मौजूद होऊंगा। बहुत शुक्रिया। आपने पास्टर साहब, वक्त थोड़ा है, आपने फरमाया कि मोहब्बत छोड़ दी है। क्या निशानी होती है लोगों को जिन्होंने मोहब्बत छोड़ दी होती है, ताकि वो पहचाने तो सही ना? हाँ जी, मोहब्बत ये है कि वो जब इकट्ठे नहीं बैठ सकते हैं, जब उनके साथ एक दूसरे की सलामती नहीं चाह सकते हैं, तो फिर वो कैसे वो उनके लिए बरकत। बहुत शुक्रिया। ये बात है, पास्टर साहब ने चाहा कि वो एक दूसरे के लिए सलामती तो नहीं चाहते, तो अगर वो कुछ समझते हैं ना वो खुदा से मोहब्बत करता है, तो गौर से सुन लीजिए, चाहे कोई भी हो पूरी दुनिया में। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो पास्टर साहब आगे क्या लिखा है, मेरे हुक्मों पर अमल करो। अमल करोगे, सिर्फ प्रीच नहीं करोगे, सिर्फ टीच नहीं करोगे, चौधरी नहीं बनोगे दूसरों के ऊपर, अमल करोगे। लिखा है जो सब तुम में बड़ा होना चाहे वो दूसरों का क्या बने पास्टर साहब? खादम बने। और खादम भी कौन सा बने पास्टर साहब? आप तो पास्टर हैं, आपको पता है, जो सबसे नीचे वाला खादम है वो बने पहले, चौधरी नहीं। हाँ जी। तो वो जो चौधरी हैं उनकी दुआएं नहीं सुनी जाएंगी, चाहे वो स्लीब लगा लें, चाहे वो तिलक लगा लें, चाहे वो टोपियां पहन लें, दाढ़ियां रख लें, कुछ भी कर लें, खुदा जाहिर पर नहीं
बल्कि वो बातन पर निगाह करता है, तेरे अंदर क्या भरा है। ए फक्की और फरीसियों, तुम उन कब्रों की मानिंद हो जिनको व्हाइट वॉश, सफेदी फिरी हुई है, अंदर तुम्हारे गलाजतें हैं और तुम कहते हो कि हम खुदा के लोग हैं। मसीह ने फरमाया तुम खुदा के नहीं हो। वहां पर बड़ा सख्त जवाब है। पास्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने कॉल की, वक्त थोड़ा है, नेक्स्ट टाइम कॉल कीजिए, फिर आपके साथ ज्यादा बात होगी। तो पास्टर साहब कह रहे हैं कि पहले देखें कि हुक्मों पर अमल है, बाद में मोहब्बत का दावा कीजिए। हमारे साथ एक और कॉलर है, इनसे भी बात कर लेते हैं और फिर हम इख्तिताम करेंगे। पास्टर फ्रांसिस साहब हैं मेरा ख्याल है, तो थोड़ा वक्त है मोहतरम, शुक्रिया, बात कीजिए। जनाब, आपके साथ अभी बात हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है और जिंदगी टीवी जो काम कर रहा है, हम बहुत ज़्यादा आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। मेरे बड़े भाई भी आपके बहुत अच्छे फ़ैन हैं, पास्टर सैमुअल सालिक उनका नाम है, और हम आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं आपके टीवी को और आपको भी। ये यीशु का जलाल है मेरे भाई, मैं खाक और राख, मेरी टीम उनको बहुत शुक्रिया। मैं तो खाक और राख और एक आवाज़ हूँ जो उसने अपने कर्म मुझ पर किया है, खिदमत कर रहा हूँ। अगर आपको बरकत मिल रही है, कौमों को बरकत मिल रही है, तो ये खुदा रूहुल कुद्स का कल कॉल कर सकता हूँ? जब एग्जैक्ट टाइम कितना है, कितने बजे कॉल करूँ पाकिस्तानी? जी, इस वक्त आपके पास सिर्फ 5 मिनट हमारे पास बाकी हैं, तो अगर आप 55 मिनट्स पीछे चले जाएं तो हर जुमे आप कॉल कर सकते हैं। जी जी, अच्छा अच्छा। तो आप किस जगह से बात कर रहे हैं? मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ जी। जी पास्टर साहब, आप और आपकी खिदमत को खुदा बरकत दे, दोबारा कॉल ज़रूर करते रहिए, खुदामंद की सलामती आपके साथ हो। मेरी दरख्वास्त होगी दुआ में हमें याद रखिए। जी बात कीजिए, 1 मिनट में आपको देता हूँ। जी जी, मैं कह रहा हूँ कि हम अब राब्ते में रहेंगे और हम बड़ी देर से आपके प्रोग्राम देखते हैं। पहले हम गुजरांवाले में थे और उधर हम नेट पे आपके प्रोग्राम डाउनलोड कराते थे और उसकी क्लिप फिर सुना करते थे, और भाई मुझे बताते थे कि ये डॉक्टर डैनियल हैं और जिंदगी टीवी जो है वो रन कर रहे हैं और इस तरह से खुदा की खिदमत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपके साथ बात होगी। ये सब यीशु का फजल है, और जब तक ये जिंदगी टीवी है या कोई और टीवी है, अगर वो खुदा के कलाम और उसके रूह की ताबेदारी में रहेंगे, बरकत बनी रहेगी। वरना हैकल है, लेकिन मसीह ने फरमाया डाकुओं का घर बना दिया है। तो ये उसके फजल से है पास्टर साहब, दुआओं में याद रखिए बस। आपकी बड़ी मेहरबानी। 1 मिनट हमारे पास है और एक कॉलर अभी भी हैं, तो मैं इनको 30 सेकंड दे देता हूं, अगर वो साथ हो जाएं। जी बात कीजिए जल्दी से, 30 सेकंड आपके पास है। हेलो जी, आपके पास 30 सेकंड है, फिर मुझे प्रोग्राम खत्म करना है। नेक्स्ट टाइम जल्दी कॉल कीजिएगा, बात कर लीजिए जल्दी से प्लीज। हाँ जी, दुआ करते सर। जी खुदावंद आसमानी बाप, हम पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं और जिंदगी के लिए। नाजरीन, खुदामंद का शुक्र अदा करते हैं, राब्ते में कुछ खराबी है। खुदामंद का शुक्र, उसकी तारीफ कि वो हम सब पर मेहरबान है। कलाम खुदा की रोशनी में आसमान से बरक़ात का वादा हमारे साथ है। उन बरक़ात को पाने का तरीका हमें बता दिया गया है। अब हम पर इसका इनासार है, हम खुदा की मोहब्बत से मोहब्बतें बांटने वाले बनेंगे, बरक़ात बांटने वाले बनेंगे, या नफ़रतों से नफ़रतें बांटने वाले, नफ़रतें फैलाने वाले बनेंगे। फैसला हमारा है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल।